ایران اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ آج سیز فائر اختیار کر چکی ہے. ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود شیعہ رہنما مولانا سید نقوی تقوی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور تمام ان لوگوں کو جو حق پسند ہیں, جو سچائی پسند ہیں, جو عدالت پسند ہے, جو آزادی پسند ہے, انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت جنگ شروع ایگریسرز کا کیا کہنا تھا. ان کا کہنا تھا کہ 2 دن میں جنگ ختم ہو جائے گی, ہم وہاں کی گورنمنٹ چینج کر دیں گے, ہم وہاں کا جو انقلابی نظام ہے اسے چینج کر دیں گے, ہم اسے ختم کر دیں گے. 2 دن پھر 1 ہفتہ ہوا, وہ 10 دن ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو 10 پوائنٹ ایران نے پیش کیے تھے اسے قبول کیا ہے اور اسی پہ اب گفتگو جاری رہے گی. لہذا سب کے سامنے نتیجہ جس دیکھیے سب سے پہلے مقصد تھا وہ کیا تھا. ان کا کہنا تھا انکنڈیشنل جسے کہیے سرنڈر. وہ چاہتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ ان کے سپریم لیڈر کو وہ مار کے در حقیقت ان کے پوری عوام کو وہ جھکا دے گی یا ان کے سامنے جسے کہیے کہ نتمستک ہو جائے گی, سجدے میں چلے جائے گی. لیکن اس قوم نے دکھایا, اپنی بہادری کا لوہا منوایا اور یہ بتایا کہ سچ کے ساتھ رہو. اور انہوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ ذلت کے ساتھ ہمیں زندگی برداشت نہیں ہے, اپنی قربانی دینا, اپنی شہادت دینا برداشت ہے. پوری دنیا میں آزادی سپورٹ کرنے والے ہیں, جسٹس کو سپورٹ کرنے والے ہیں, ہیومینٹی کو سپورٹ کرنے والے ہیں. اور ان کے سامنے جو لوگ ہیں وہ در حقیقت ان کے لیے کوئی انٹرنیشنل لاز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی انسانیت ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہے. آپ نے دیکھا میناب میں ایک بچوں کے اسکولز پہ کس طرح سے بمباری کی گئی, کئی ہاسپٹلز پہ بمباری کی گئی. ایون وہ سب سے بڑا ہاسپٹل جو تہران کا ہے, جو ہمارے ملک کے فادر آف نیشن کے نام پر, مہاتما گاندھی جی کے نام پر رکھا ہوا ہے, جو بچوں کا ہاسپٹل ہے, اس کے اوپر بھی بمباری کی گئی. کتنے یونیورسٹیز کو برباد کیا گیا, بریجز کو. یہ سب جسے کہیے وار کرائم ہے. اس میں ان کی انسانیت کا جو وہ علم اٹھائے ہوئے ہیں, جو وہ کہتے ہیں حقوق بشر, وہ در حقیقت وہ صرف نام کے ہیں. ان کا نیچر ہے, جو ان کا کردار ہے, وہ ایپسٹین فائلز میں موجود ہے. بالکل حضرت, یہ جو پورا کانفلکٹ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ابنائے ہارموز جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کیا اہمیت ہے اس کی زیادہ؟ دیکھیے اسٹریٹ آف ہارموز میں سے دنیا کا اکثر جو انرجی سپلائی ہے وہ وہیں سے جاتی ہے. لہٰذا یہ ایران کے اور عمان کا جو ٹیریٹوریل واٹرز ہے اسی سے پاس ہوتا ہے. لہٰذا ہمیشہ سے یہ کھلا ہوا تھا. ایران نے کبھی اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی. یہ تو جنگ تھی جس کی وجہ سے جو انہوں نے شروع کی, اسی کی وجہ سے یہ پرابلمس کریٹ ہوئی, اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو عام لوگ ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے. ان کے لیے گیس کی پرابلم ہو گئی ہے, ان کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی پرابلم ہو گئی ہے, ان کی زندگیوں کے خرچے بڑھ گئے ہیں. لہٰذا یہ ایگریسرز کی وجہ سے ہوا ہے, جنہوں نے ایک صلح و شانتی کا ماحول جو تھا, ایک امن و شانتی کا ماحول تھا, اسے توڑا ہے اور اس کو سارے دنیا کو ڈسٹرب کر دیا. حضرت میرا آخری سوال یہ کہ جنگ بندی ہو گئی ہے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ عارضی طور پر جنگ بندی ہے. ایسا کچھ نہیں کہ جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا ہے, یہ جنگ آگے جاری رہے گی. اس طرح سے ابھی جس طرح کی جھڑپیں ہیں وہ تمام جو چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے یہ تو دنیا والے خود جانتے ہیں کہ جو سامنے والے ممالک ہیں ان کے لیے کوئی رول نہیں, وہ اپنے کو مانتے, کوئی لا نہیں مانتے. وہ جیسے کہ یہ جنگل راج ہم ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے وہ مانتے ہیں, اور کوئی ان کے لیے ہیومینیٹیرین لاز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, انٹرنیشنل لاز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہٰذا وہ ان کی بات کا, ان کے قول کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم نے خود دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, 2 بار ایسا ہوا پچھلے کچھ مہینوں میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, بات چیت آگے بڑھ رہی ہے اور بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے, چیزیں سالو ہو رہی ہیں. اسی بات چیت کے درمیان انہوں نے اٹیک کیا. تو ان کے قول و فعل کا, ان کی بات کا, ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ان کو سچ ان کے اندر پایا نہیں جاتا ہے, جھوٹ اور مکاری ہی نظر آتی ہے. لہٰذا اس بات کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو بات سالم ہے, جو واضح ہو گئی, 40 دن کے قریب یہ جنگ ہو گئی, وہ یہ ہے کہ ایران کی عوام, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سر کٹانے کو تیار ہیں, لیکن ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار نہیں. وہ غلط کو غلط کہیں گے, وہ غلط کے سامنے, اور جسے کہیے گنڈا گردی, جسے کہیے آپ جو کہیے زور زبردستی کہیے, بلنگ کہیے, وہ اس کے آگے وہ جو ایک ٹرینڈ دنیا میں بن رہا تھا, جو وینیزویلا میں ہم نے دیکھا اور اس کے بعد کوئی بھی ملک آ سکتا تھا, اس پہ انہوں نے سٹاپ لگایا ہے اور ساری دنیا کو ایک قوت دی ہے کہ اگر ہمت رکھیں گے تو وہ انہی کی فتح ہوگی, انہی کی جیت ہوگی. حضرت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پورے وار کے اندر ہندوستان کا اگر بھارت کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ایک کشمکش تھی,
اور कॉन्फ्लिक्ट की चीज़ें थी कि उन्होंने सही तरह से स्टैंड नहीं लिया ईरान के रिगार्डिंग, क्या कहना चाहें? देखिए, मैं यहाँ पर रोज़ देख रहा हूँ और कई सिटीज़ में भी गए वहाँ देख रहा हूँ कि हर जगह जहाँ जा रहे हैं लोग जो हैं ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान के साथ हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो पूरी तरह से जानते हैं। उन्होंने जिसे कहिए ब्रिटिश राज भी देखा है, दूसरे की हुकूमतें देखी हैं, उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर के लोगों के ऊपर जुल्म व सितम किया था, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और वो सच के साथ हैं और वो जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। ये उनके अंदर इंसानियत बेपनाह पाई जाती है, उनके अंदर ह्यूमैनिटी वैल्यूज़ पाई जाती हैं, लिहाजा वो हमने हर जगह देखा कि वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है हरियाणा से आए शेर रहनुमा अमीर अब्बास नकवी। अल्हम्दुलिल्लाह, मकाम शुक्र खुदा का ये है कि उस परवरदिगार आलम ने हमारी इज़्ज़त की लाज इस लिहाज से भी रखी है कि आज इस जंग को 40 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अली वालों ने मैदान में आकर उन्हें खैबर याद दिलाकर अपनी फ़तह का ऐलान किया। आज यहाँ जश्न फ़तह खैबर के सदक़े से आज ईरान की कामयाबी के लिए हम इस खुशी में इनके साथ शामिल हुए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में ये भी बात वाज़े हो रही है कि जंग बंदी फौरी तौर पर, मतलब आर्जी तौर पर हुई है, फौरी तौर पर हुई है लेकिन आर्जी तौर पर हुई है। ये पूरी तरह से जंग बंदी का खात्मा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरी तरीके से शिकस्त खा चुके हैं और इन्होंने कल रात ये ऐलान किया था कि हम ईरान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ट्रंप ने, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शिकस्त का सबसे बड़ी दलील तो उसी वक्त ये थी कि जिस ट्रंप ने आगे रहबर मुअज़्ज़म हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया, वो उनकी शहादत हमारे लिए वाक़ई बहुत गमनाक और अलमनाक शहादत है, हमारे लिए बहुत गम का मौका है। लेकिन उनकी शहादत ऐसा खून उनके रंग ने भरा है इस दुनिया में, लोगों को अपने डॉलर के ज़रिए से ख़रीदा था, ईरानी अवाम को रिज़िम चेंज करने के लिए आए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मकाम शुक्र है कि उनका खून वो रंग लाया है कि वो जो उनके ख़िलाफ़ थे वो भी आज उनका रहबर मुअज़्ज़म का झंडा लेकर के उनके ख़िलाफ़ हुए हैं अमेरिका की। और ये खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जो अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ था, ख़ुद अमेरिका में उनके ख़िलाफ़ 80 सीटों पर जो है वो ट्रंप के ख़िलाफ़ वहाँ पर जो है रिज़िम चेंज करने का दावा किया गया है। हम अपने वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी कदम उठाया है, ना तो उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ कदम उठाया, ना अमेरिका के ख़िलाफ़ कदम उठाया है। हमारी पूरी अवाम साथ है और ईरान का भरपूर साथ दिया है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, सिख हों, सुन्नी हों, शिया हों। इस प्लेटफार्म पर आकर तमाम मज़ाहिब के अफराद ने एक प्लेटफार्म पर आकर इस इंसानियत के परचम को उठाया है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हमारे साथ हैं, जाहिर सी बात है वो अलग नहीं हो सकते। हमारे कौम के छोटे छोटे बच्चों के नारे एहतजाज ने इस अमेरिका और नेतन्याहू की हुकूमतों को हिला कर रख दिया। सैयद सादिक हुसैनी दिल्ली से हैं, तंजीम है तकरीब मज़ाहिब कौंसिल। ये ईरान की जो 10 शर्तें हैं पहले ही दिन से, जंग के आगाज़ से, कि ये जंग तभी रुकेगी जब ईरान के अपने इन शर्तों को माना जाएगा। दुनिया ने जो इसमें वसातत की है, दरमियान में पड़े हैं, डिप्लोमेसी को एक और मौका दिया है, जबकि वो मुसलसल धोखे पे धोखा मुज़ाकरात के ही दरमियान में उन्होंने खाया। लेकिन इस दफ़ा चूँकि ईरान ने अपनी कुदरत पूरी दुनिया के सामने दिखाई और अमेरिका जैसे मगरूर और ज़ालिम इसराइली ताकतों को घुटने पर टिकवाया, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ईरान के 10 पॉइंट को, जो उनके नुकात हैं, जिस पर उसने ये कामिलन ये कहा जाएगा कि अमेरिका का सरेंडर था ईरान के मुकाबले। इसमें आज ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। तो अगर इन 10 नुकात को मुज़ाकरात में पूरे तौर पर मान लिया जाता है, तस्लीम कर लिया जाता है, जैसे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, जैसे ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट है, ईरान को जो उनका हरजाना है, जो नुकसान पहुंचा है, पिछले सैंक्शन जो 40, 42, 47 साल से हैं, ये सब हटते हैं, तो ये सीज़ फायर आगे सुलह में तब्दील हो जाएगा। पहली बात समझ में आई आज पूरी दुनिया को कि आप किसी को मज़लूम को मारने जाओ तो अब ये नहीं होगा कि मज़लूम को मारते रहो और हम अकेले खुशहाल खड़े रहेंगे। ईरान ने दुनिया को समझाया कि तुम अब मारोगे तो फिर इस मारने की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। इस स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की हैसियत ये है कि आज पूरी दुनिया उसकी कीमत चुका रही थी। ईरान इस पर राज़ी नहीं था, लेकिन आप हमारे घर में आके ईरानियों को मार रहे हैं और वो पानी का गलियारा और वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ उनके घर के अंदर से जा रहा है।
आप उनको मार भी रहे हो और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ आप खुला भी चाहते हो। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दुनिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी, जिसे दुनिया को समझ में आया कि ये जंग आगे नहीं जा सकती, और दुनिया ने ईरान की ताकत को भी समझा और माना और उसके आगे सरेंडर भी किया। जैसा कि आपने सिक्योरिटी काउंसिल में देखा है, कल वीटो भी हुआ कि उसे ताकत के बलबूते पर ईरान से नहीं छुड़ाया जा सकता। उनके घर का मामला है, उनके मुल्क के अंदर से वो गलियारा जा रहा है। थे कि ईरान का तसल्लुत, तसर्रुफ और उनकी हाकिमियत उस पर बरकरार रहेगी। आज़िम हुसैन ज़ैदी कहते हैं मुझे, मजलिस उलमा से भी मेरा ताल्लुक़ है, वलफजर फाउंडेशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। जंग का ख़ात्मा उसी सूरत में इसको माना जाएगा जब ईरान ने जो शराइत रखे हैं, जो पॉइंट दिए हैं, उन पर अमल दरामद हो। चूँकि जंग ईरान के ऊपर थोपी गई थी, ईरान ने हमला नहीं किया था। और सबसे बड़ा मसला ये है कि पूरी दुनिया ने इस बात को देखा और महसूस किया कि ईरान जंग नहीं चाहता था, लेकिन उस पर हमला भी किया गया मुज़ाकरात के दरमियान। और सबसे ज़्यादा दहशत गर्दाना बात यह है कि 160 से ज़्यादा मासूम बच्चियां और उनके स्कूल के ऊपर जिस तरह से अटैक हुआ और उनको शहीद किया गया, उन्हें कत्ल किया गया, तो ये जेनोसाइड है। और पूरी दुनिया ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। दुनिया कहती है हमें जंग नहीं, अमन चाहिए, अमन के ख्वाहिशमंद हैं, और ईरान भी यही चाहता है। ज़ाहिर है कोई भी मुल्क जब अपनी सबूरता के लिए और अपने वक़ार को कायम रखने के लिए और अपनी अना के लिए मैदान जंग में उतरता है और अल्लाह के ऊपर भरोसा करके, तो यही कैफियत होती है कि गैबी मदद भी आती है। अब दुनिया ने ये देखा कि एक छोटा सा मुल्क जिस पर 40 साल से पाबंदियां लगी हुई थी, वो किस तरह से मैदान अमल में रुका भी रहा, डटा भी रहा, मुकाबला भी करता रहा और सरेंडर करने को भी मजबूर कर दिया। क्योंकि मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत का दिल रखने वाले, जिनके सीनों में इंसानियत का दिल धड़कता है, वो चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों या ईसाई, किसी भी मज़हब और किसी भी तबक़े से ताल्लुक़ रखते हों, वो आज उनके यहाँ जश्न का माहौल है। लेकिन साथ साथ एक गम भी है और एक गम की कैफियत भी है, चूँकि रहबर मुअज़्ज़म, जंग बंद होने के बाद रहबर मुअज़्ज़म का गम फिर से ताज़ा हो गया है कि जो नुकसान हुआ है और जो बड़ी बड़ी शख्सियतों को इस जंग में खोया है। हालांकि शहीदों का लहू रंग लाता है और शहीद के लहू की सुर्खी आज पूरी दुनिया में आसमान के ऊपर चमक रही है और दुनिया उसको महसूस भी कर रही है। तो जाहिर सी बात है, नौजवान भी, पूरी दुनिया के नौजवान अब यही चाहते हैं कि तमाम ममालिक अपने अपने वक़ार के साथ, अपनी अपनी तौक़ीर के साथ और अपनी अपनी सभ्यता के साथ, अपनी अपनी तहज़ीब के साथ आगे बढ़ें, दुनिया तरक्की करे। जंग नहीं होना चाहिए। जिसने भी मुज़ाकरात का काम किया तो ये एक अच्छी बात है और करना चाहिए। हमारे मुल्क, हो सकता है हमारे मुल्क के जो सियासी हज़रात हैं और जो सरबराहान हैं, उन्होंने भी दरपर्दा कोई रोल अदा किया हो, और जाहिर सी बात है चाइना और रशिया ने भी कहीं ना कहीं रोल अदा किया है। तो सबको इसमें इस मसले को मिल के हल करना चाहिए। आइंदा अब कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। और ज़ाहिर है ईरान ने जो जंग लड़ी है वो सिर्फ उन्होंने अपने लिए जंग नहीं लड़ी है, बल्कि उन तमाम कमज़ोर और मुस्तज़िफ़ीन और उन ममालिक के लिए कि जिनको ज़बरदस्ती धमकाया जाता है, जिनकी तहज़ीब को ख़त्म किया जाता है, जिनको अपने हिसाब से मुल्क चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती, उन तमाम कमज़ोर ममालिक की तरफ से और उन तमाम मुस्तज़िफ़ीन की तरफ से जंग लड़ी है। जंग सिर्फ ईरान की नहीं थी, ये इंसानियत की जंग थी। चाहे वो मिडिल ईस्ट के ममालिक हों या दूसरी कंट्रीज़ हों, अवाम जहाँ जहाँ की भी थी वो सब ईरानी मज़लूमीन के साथ खड़ी थी। लेकिन हाँ, सरबराहों का रोल अलग था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मफादात वाबस्ता हैं इसराइल से, कहीं ना कहीं उनके मफादात वाबस्ता हैं अमेरिका से। वो सिर्फ अपनी गद्दी को बचाना चाहते हैं। उन्हें ना इस्लाम से कोई लेना देना है, ना इंसानियत से कोई लेना देना है। अब ये मौजूद ईरान कल्चर हाउस के अंदर और यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही थी वो आर्जी तौर पर बंद कर दी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के साहबजादा नशीन सैयद अनफाल निज़ामी साहब। हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत मजलूम मासूम मुसलमान और दुनिया के सब लोग मारे जा रहे थे। हम लोग तो बहुत खुश हैं कि कम से कम ये एक अच्छा पैगाम आया है कि जो इंसानियत के लिए, इजराइल तो हमेशा जुल्म करता है। आप भी यहाँ पर आए हैं, दरगाह शरीफ की तरफ से आपने नुमाइंदगी की है ईरान कल्चर हाउस के अंदर। क्या पैगाम लेकर आए, क्या मैसेज लेकर आए हैं? हम तो यही पैगाम लाके आए, सबको, हिंदू मुसलमान सबों को भाईचारा का एक मैसेज आना चाहिए। सब लोग शिया सुन्नी को मिल के प्यार मोहब्बत से काम करना चाहिए।
आने वाले दिनों में किस तरह के असरात देखने को मिलेंगे, खास तौर से ईरान की अगर हम बात करें या पूरा मिडिल ईस्ट जो मशरिक़ वस्ता है उसको किस तरह से देखेंगे आप? इंशाल्लाह वो भी तो अच्छा रहेगा। ईरान उनके साथ भी बहुत अच्छा काम करे, सब मिलजुल के रहेंगे। ईरान ने उनका बहुत ख्याल किया, गल्फ़ का बहुत ख्याल किया उन्होंने, और जितने भी लोग थे आवाम के लिए नहीं किया उन्होंने, जो अमेरिकन जो बेस थे उसको ख़त्म किया है। बिल्कुल, जालिमों के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने, इंसानियत के लिए, मासूम बच्चों के लिए जी। जो 160 बच्चे मारे गए थे उनके लिए। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, कुछ आलिम दीन, हम उनसे बात करेंगे। हम सैयद असगर मेहदी इमाम जुमा वल जमात कोडिनार गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। जाहिर सी बात है खुशी का मौका होगा कि जब जालिम की हार होगी, उन लोगों की जीत होगी कि जिन्होंने हमेशा उन लोगों के ख़िलाफ़ जंग की है कि जो लोग बच्चों को मारते हैं, जो लोग स्कूलों पे हमला करते हैं, जो लोग सिविलियंस पर हमला करते हैं, उनके ख़िलाफ़ ईरान की फ़तह हुई, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। बातिल के ऊपर हक़ की जीत हुई है और यही हम कहना चाहेंगे कि जालिम की हार हुई है आज। जो लोग मजलूमों पर जुल्म करते हैं वो कभी ताकतवर नहीं होते। मजलूम पर जुल्म करने वाला हमेशा बुज़दिल ही रहा है। ताकतवर तो ईरान है जो हमेशा सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा रहा और उसकी कोई बात नहीं मानी और अपनी बात को रख के आज उसको फ़तह मिली है। उसके लिए हमको बहुत खुशी है। देखिए, देखा जाए तो कोई भी देश है वो जंग के लिए इतना नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी इकोनॉमी पे असर हो या कैसे भी हो। आजकल हमने देखा कि इतने टाइम से ये लड़ाई चल रही है, कितनी बार उन्होंने कहा कि भाई सीज़ फायर है, कितनी बार कहा कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, पर अभी जाके प्रॉपर बात हो पाई है कि कोई जंग का कोई ऐसा आसार नहीं दिख रहा है। तो ये अच्छी बात है, हम खुश हैं कि आगे चल के कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा और हमेशा हम तो दुआ करते हैं कि ईरान की फ़तह हो और ऐसे ही ईरान बढ़ चढ़ के तरक्की करे। अभी देखिए जो 10 पॉइंट ईरान ने दिए हैं और ये भी बोला है, प्रेस टीवी में ने भी और अल जज़ीरा ने भी, बहुत सारी न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट किया है कि ये 10 पॉइंट्स जो है वो ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से एक्सेप्ट किए गए हैं। ये अच्छी बात है, ये एक अच्छा कदम है। कोई भी सिविलाइज्ड नेशन या कोई भी सिविलाइज्ड कौम जंग नहीं चाहती है और ये जंग तो जाहिर सी बात है इम्पोज़ की हुई थी, और जब इम्पोज़ की हुई है आपके ऊपर तो फिर जब आपकी डिमांड्स पूरी होंगी आप तभी मानोगे। ईरान इस पूरी जंग में थ्रू आउट दिस 40 डेज अपर हैंड रहा है, तो अपर हैंड होने के बाद आपको आपके शराइत मानने ही पड़ेंगे सामने वालों को। 10 पॉइंट्स जो हैं ईरान के, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि ये सीज़ फायर जो है टेम्परेरी नहीं है, इसको फॉर एवर इसको जो है स्टॉप किया जाएगा और नॉट ओनली एट ईरान। कहीं ना कहीं ईरान की ये दिए हुए पॉइंट को यूएस ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया होगा, तभी ईरान जो है वो 2 हफ्ते के लिए एग्री किया है। अदरवाइज इससे पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं। ईरान भी अगर ये मान रहा है कि 2 हफ्ते के लिए हम नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं या 2 हफ्ते के लिए हम जो है स्टॉप कर रहे हैं इस वॉर को, तो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ भी जो पॉइंट्स हैं ईरान ने जो दिए हैं कहीं ना कहीं से एक्सेप्टेंस आया है। तो उसमें जंगबंदी का जो है वो परमानेंट वाला है। अब जो इंटरनेशनल मीडिया या जो भी कह रहा है कि ये टेम्परेरी सीज़ फायर है, अगर आप ट्रंप के दिमाग पे जाओगे या उसका जो माइंड सेट है उसके हिसाब से जाओगे तब तो वो कल भी वापस शुरू कर सकता है रिचार्ज होके। लेकिन जो ईरान का जो पॉइंट है वो जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें परमानेंट जंगबंदी की बात की हुई है, तभी उन्होंने बोला कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि हम ये देख रहे हैं जब से सीज़ फायर का ऐलान हुआ है उसके बाद से हिंदुस्तानी मुसलमानों काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला, खासतौर से मुस्लिम नौजवान काफ़ी ज़्यादा इस पर मुतमईन है, खुशाइंद करार दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी जो है वो बाशऊर आदमी या कोई भी सिविलाइज्ड आदमी ब्लड शेड नहीं चाहता है। किसको ब्लड शेड पसंद है? कोई नहीं चाहता कि नहत्ते लोग मारे जाएँ, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ जाए। वो तो दरिंदे हैवान है, ये सारे नुकसान जो है लोगों का ब्लड है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों की जो है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी जब इस जंग के बाद जो है रुकेंगी तो जाहिर सी बात है हर इंसान को जो बाशऊर आदमी है उसको खुशी होगी। हम भी खुश है, पूरी उम्मत मुसलमान खुश है। हम जंग ख़त्म होने के साथ साथ जीत की भी खुशी मना रहे हैं। मेरा नाम अम्मार हुसैन है, मैं अमरोहा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जंगबंदी का ऐलान हुआ है, किस तरह की खुशाइंद करार दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंगबंदी का जिस तरह ऐलान किया है, बस ये दुआ कीजिए कि ये ट्रम्प इस लास्ट जो डिसीजन लिया है इस पर लास्ट तक कायम रहे। 1 मंथ में आपने भी सबने स्टेटमेंट देखे कि सुबह कुछ और शाम को कुछ और, तो इंशाल्लाह ये सीज़ फायर कायम रहे बस। बाकी जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, सभी कंट्री को, पूरी वर्ल्ड इससे अफेक्टेड है इस जंग से। इवन आपने देखा इंडिया, मतलब पूरा वर्ल्ड इस जंग से अफेक्टेड है। पूरे दुनिया में ईरान की नहीं दुआ हुई। इवन ये नहीं कि खाली शिया कौम ने दुआ की, जिस बंदे के अंदर भी इंसानियत है उसने पूरी दुनिया में दुआ की रात।
सब लोगों की दुआओं की वजह से ये सब चीज़ें सब नॉर्मल रही और जंग अल्लाह के करम से मतलब ये जंग बंद हुई। बस यही कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह ईरान को इस जंग में फतहमंदी हासिल हो और ये जंग रुक जाए किसी भी तरह। इससे सभी का नुकसानात हैं, सभी ये चीज़ फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का। तो बस यही दुआ है कि ईरान को जंग में फतहमंदी हासिल हो। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अपने दिल पे हाथ रख के सोचें तो हम वो चीज़ सोच भी नहीं सकते हैं। तो बस दुआ है वहाँ के लोगों के लिए कि उनको हिम्मत ताकत दे ऊपर वाला परवरदिगार आलम और इस जंग में ईरान को फतहमंदी हासिल हो। तो सुप्रीम पावर के सामने ईरान अकेला खड़ा हुआ है। 56 कंट्रीज़ जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं और सिर्फ ईरान है जो हक पर डटा हुआ है और वो झुकेगा नहीं। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान, अफ्रीदी मुंसिफ टीवी, दिल्ली।